اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22ویں سپارے کا ترجمہ پڑھیں گے۔ کوشش یہی ہوگی کہ ختم بھی کر سکیں، کیونکہ مشکل ہے، 6:22 ہو رہے ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ جتنا ہم پڑھ سکیں اتنا پڑھ لیں۔ 22واں سپارہ، ومن یقنط ومن یقنط اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار رہیں اور نیک اعمال کرتی رہیں تو ہم ان کا ثواب بھی انہیں دگنا دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے ازواج پیغمبر، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا، کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ کرنے لگے، اور شک اور لالچ سے محفوظ بات کرنا، اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا، اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری میں رہنا۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے، اور تمہیں طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے، اور تم اللہ کی آیتوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و حکمت کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے یاد رکھا کرو۔ بے شک اللہ صاحب لطف خبردار ہے۔ بے شک اللہ صاحب لطف خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں، اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں، اور عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار فرما رکھا ہے، اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے کام میں کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے جب آپ نے اس شخص سے فرمایا جس پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، اور اس پر آپ نے انعام فرمایا تھا کہ تو اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں روکے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھ رہے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ لوگوں کا خوف رکھتے تھے، اور فقط اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں۔ پھر جب زید نے اسے طلاق دینے کی غرض پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے جبکہ وہ ان سے بے غرض ہو گئے ہوں، اور اللہ کا حکم تو پورا کیا جانے والا ہی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کام کی انجام دہی میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے فرض فرما دیا ہے۔ اللہ کا یہی طریقہ و دستور ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا حکم فیصلہ ہے جو پورا ہو چکا۔ وہ پہلے لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اس کا خوف رکھتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی
ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाए, और वो मोमिनों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। जिस दिन वो मोमिन उससे मुलाकात करेंगे तो उनकी मुलाकात का तोहफा सलाम होगा, और उसने उनके लिए बड़ी अजमत वाला अजर तैयार कर रखा है। ऐ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको मुशाहिदा करने वाला और खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, और उसके इज़्न से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला और मुनव्वर करने वाला आफताब, और अहले ईमान को इस बात की बशारत दे दें कि उनके लिए अल्लाह का बड़ा फजल है। और आप काफिरों और मुनाफिकों का कहना कि हमारे साथ मजहबी समझौता कर लें, हरगिज न माने, और उनकी एज़ा रसानी से दरगुजर फरमाएं, और अल्लाह पर भरोसा जारी रखें, और अल्लाह ही काफी कारसाज है। ऐ ईमान वालों, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो, फिर तुम उन्हें तलाक दे दो कबल इसके कि तुम उन्हें मस करो, तो तुम्हारे लिए उन पर कोई इद्दत वाजिब नहीं है कि तुम उसे शुमार करने लगो। बस उन्हें कुछ माल व मता दो और उन्हें अच्छी तरह हुस्न सलूक के साथ रुखसत करो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपके लिए आपकी वो बीवियां हलाल फरमा दी हैं जिनका महर आपने अदा फरमा दिया है, और जो आपकी ममलूक हैं, जो अल्लाह ने आपको माले गनीमत में अता फरमाई है, और आपके चचा की बेटियां और आपकी फुफियों की बेटियां और आपके मामू की बेटियां और आपकी खालाओं की बेटियां जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है, और कोई भी मोमिना औरत बशर्ते के वो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के लिए दे दे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसे अपने निकाह में लेने का इरादा फरमाए। सिर्फ आपके लिए खास है, मोमिनों के लिए नहीं। मोमिनों के लिए नहीं। वाकई हमें मालूम है जो कुछ हमने उन पर उनकी बीवियों और उनकी ममलूका बांदियों के बारे में फर्ज किया है, ताकि आप पर कोई तंगी ना रहे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम फरमाने वाला है। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इख्तियार है, इनमें से जिसको चाहें मौखर रखें और जिसे चाहें अपने पास जगह दें, और जिनसे आपने आरजी किनारा कशी इख्तियार फरमा रखी थी, आप उन्हें तलब फरमा लें, तो आप पर कुछ मुजायका नहीं, और जिनसे आपने किनारा कशी इख्तियार फरमा रखी थी, आप उन्हें तलब फरमा लें, तो आप पर कुछ मुजायका नहीं। ये इसके करीब तर है कि उनकी आंखें ठंडी होंगी और वो गमगीन नहीं रहेंगी, और वो सब इससे राजी रहेंगी जो कुछ आपने उन्हें अता फरमा दिया है, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़े हिल्म वाला है। और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ा हिल्म वाला है। इसके बाद कि उन्होंने दुनियावी मुनफातों पर आपकी रजा और खिदमत को तरजीह दे दी है, आपके लिए भी और औरतें हलाल नहीं, और यह भी जायज नहीं कि आप इनके बदले दीगर अज़वाज ले लें, अगरचा आपको उनका हुस्न कितना ही उम्दा लगे, मगर जो कनीज आपकी मिल्क में हो, और अल्लाह हर चीज पर निगहबान है। ऐ ईमान वालों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल ना हुआ करो सिवाय इसके कि तुम्हें खाने के लिए इजाजत दी जाए। खाना पकने का इंतजार करने वाले ना बना करो। हां, जब तुम बुलाए जाओ तो अंदर आया करो, फिर जब खाना खा चुको तो फौरन मुंतशिर हो जाया करो, और वहां बातों में दिल लगाकर बैठने यह दोबारा पढ़ूंगा। ऐ ईमान वालों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल ना हुआ करो सिवाय इसके कि तुम्हें खाने के लिए इजाजत दी जाए। खाना पकने का इंतजार करने वाले ना बना करो। वहां
खाना पकने का इंतजार करने वाले ना बना करो। हां, जब तुम बुलाए जाओ तो अंदर आया करो, फिर जब खाना खा चुको तो फौरन मुंतशिर हो जाया करो और वहां बातों में दिल लगाकर बैठे रहने वाले ना बनो। यकीनन तुम्हारा ऐसा रहना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता है और वो तुमसे शर्माते हैं, और अल्लाह हक बात कहने से नहीं शर्माता। और जब तुम उनसे कोई सामान मांगो तो उनसे पसे पर्दा पूछा करो। ये तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के लिए बड़ी तहारत का सबब है, और तुम्हारे लिए हरगिज जायज नहीं कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दो, कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही आयत दोबारा पढ़ेंगे। ऐ ईमान वालों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल ना हुआ करो सिवाय इसके कि तुम्हें खाने के लिए इजाजत दी जाए। खाना पकने का इंतजार करने वाले ना बना करो। हां, जब तुम बुलाए जाओ तो अंदर आया करो, फिर जब खाना खा चुको तो फौरन मुंतशिर हो जाया करो और वहां बातों में दिल लगाकर बैठे रहने वाले ना बनो। यकीनन तुम्हारा ऐसे रहना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता है और वो तुमसे शर्माते हैं, और अल्लाह हक से नहीं शर्माता। जब तुम उनसे कोई सामान मांगो तो उनसे पसे पर्दा पूछा करो। ये तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के लिए बड़ी तहारत का सबब है, और तुम्हारे लिए नहीं कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाओ, और ना ये जायज है कि तुम उनके बाद अब तक उनकी अज़वाज से निकाह करो। बेशक ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। ख्वाह तुम किसी चीज को जाहिर करो या हर चीज को खूब जानने वाला है, उन पर कोई गुनाह नहीं अपने हकीकी आवाज से, और ना अपने तकवा बरकरार रखो। बेशक अल्लाह हर चीज पर गवाह होने के बाद है। बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहते हैं। दोबारा पढ़ूंगा आयत। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देते हैं, अल्लाह उन पर दुनिया और आखिरत में लानत भेजता है, और उसने उनके लिए जिल्लत अंगेज आजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अजियत देते हैं बगैर इसके कि उन्होंने कुछ खता की हो, तो बेशक उन्होंने बहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर ले लिया। ऐ नबी, अपनी बीवियों और अपनी साहिबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दे कि अपनी चादरें अपने ऊपर ओढ़ लिया करें। ये इस बात के करीब तर है कि वो पहचान ली जाएं, फिर उन्हें ऐज़ा न दी जाए, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम फरमाने वाला है। अगर मुनाफिक लोग और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है और मदीना में झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोग बाज ना आए तो हम आपको उन पर जरूर मुसल्लत कर देंगे। फिर वो मदीना में आपके पड़ोस में ना ठहर सकेंगे मगर थोड़े दिन। ये लानत किए हुए जंगजू, दहशतगर्द, फसादी और रियासत के खिलाफ बाग़ियाना साजिशों में मुलव्विस लोग जहां कहीं पाए जाएं, गिरफ्तार कर लिए जाएं और एक एक को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह की सुन्नत उन लोगों में है जो पहले गुजर चुके हैं, और आप अल्लाह के दस्तूर में हरगिज कोई तब्दीली ना पाएंगे। लोग आपसे कयामत के बारे में दरियाफ्त करते हैं, फरमा दीजिए उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, और आपको किसने आगाह किया शायद कयामत करीब ही आ चुकी हो। बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत फरमाई है और उनके लिए दोज़ख की भड़कती आग तैयार कर रखी है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। ना वो कोई हिमायती पाएंगे और ना मददगार।
जिस दिन उनके मुंह आतिशे दोजख में बार बार उल्टाए जाएंगे तो वो कहेंगे ऐ काश हमने अल्लाह की अताअत की होती और हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की होती। और वो कहेंगे ऐ हमारे रब, बेशक हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों का कहा माना था। और वो कहेंगे ऐ हमारे रब, बेशक हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों का कहा माना था, तो उन्होंने हमें सीधी राह से बहका दिया। ऐ हमारे रब, उन्हें दुगना अजाब दे और उन पर बहुत बड़ी लानत कर। ऐ ईमान वालों, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत पहुंचाई। बस अल्लाह ने उन्हें उन बातों से बेऐब साबित कर दिया जो वो कहते थे, और वो अल्लाह के यहां बड़ी कदर व मंजिलत वाले थे। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरा करो और सही और सीधी बात कहा करो। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल दुरुस्त फरमा देगा और तुम्हारे गुनाह तुम्हारे लिए बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करता है तो बेशक वो बड़ी कामयाबी से सरफराज हुआ। बेशक हमने अमानत आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर पेश की तो उन्होंने इस बोझ को उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए, और इंसान ने इसे उठा लिया। बेशक वो बड़ी ज्यादती करने वाला बड़ा बेखबर और नादान है। ये इसलिए कि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को आजाब दे, और अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की तौबा कबूल फरमाए, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बड़ा रहम फरमाने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अहज़ाब इख्तिताम पजीर हुई। सूरह सबा। सूरह सबा मक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो कुछ आसमानों में है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है उसी का है। और आखिरत में भी तारीफ उसी के लिए है, और वो बड़ी हिकमत वाला खबरदार है। वो उन चीजों को जानता है जो जमीन में दाखिल होती हैं और जो इसमें से बाहर निकलती हैं, और जो आसमान से उतरती हैं और जो इसमें चढ़ती हैं, और वो बहुत रहम फरमाने वाला बड़ा बख्शने वाला है। और काफिर लोग कहते हैं कि हम पर कयामत नहीं आएगी। आप फरमा दें क्यों नहीं, मेरे इल्मुल गैब रब की कसम वो तुम पर जरूर आएगी। उससे ना आसमानों में जर्रा भर कोई चीज गायब हो सकती है और ना जमीन में, और ना उससे कोई छोटी चीज है और ना बड़ी, मगर रोशन किताब में है, ताकि अल्लाह उन लोगों को पूरा बदला अता फरमाए जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। यही वो लोग हैं जिनके लिए बख्शिश और बुजुर्गी वाला उखरवी रिस्क है, और जिन्होंने हमारी आयतों में मुखालिफाना कोशिश की हमें आजिज करने के जाम में, उन्हीं लोगों के लिए सख्त दर्दनाक आजाब की सजा है। और ऐसे लोग जिन्हें इल्म दिया गया है वो जानते हैं कि जो किताब आपके रब की तरफ से आपकी जानिब उतारी गई है वही हक है, और वो इज्जत वाले सब खूबियों वाले रब की राह की तरफ हिदायत करती है। और काफिर लोग कहते हैं कि क्या हम तुम्हें ऐसे शख्स का बताएं जो तुम्हें यह खबर देता है कि जब तुम बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओगे तो यकीनन तुम्हें नई पैदाइश मिलेगी। या तो वो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधता है या उसे जुनून है। ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो आजाब और परले दर्जे की गुमराही में हैं। सो क्या उन्होंने उन निशानियों को नहीं देखा जो आसमान और जमीन से उनके आगे और उनके पीछे उन्हें घेरे हुए हैं? अगर हम चाहें तो उन्हें जमीन में धंसा दें या उन पर आसमान से कुछ टुकड़े गिरा दें। बेशक इसमें हर उस बंदे के लिए निशानी है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है। और बेशक हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह से बड़ा फजल अता फरमाया और हुक्म फरमाया, ए पहाड़ों, तुम इनके साथ मिलकर खुश इल्हानी से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी। और हमने उनके लिए लोहा नरम कर दिया
اور ارشاد فرمایا کہ کشادہ زر زرہیں بناؤ، اور ارشاد فرمایا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور ان کے حلقے جوڑنے میں اندازے کو ملحوظ رکھو، اور اے آل داؤد تم لوگ نیک عمل کرتے رہو، میں ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو، میں ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، جس کی صبح کی مسافت ایک مہینہ کی تھی اور اس کی شام کی مسافت ایک ماہ کی راہ تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، جس کی صبح کی مسافت ایک مہینہ کی راہ تھی اور اس کی شام کی مسافت بھی ایک ماہ کی راہ ہوتی، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جنات تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے گا ہم اسے دوزخ کی بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ جنات ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے، ان میں بلند و بالا قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن تھے جو تالاب اور لنگر انداز دیگوں کی مانند تھے۔ اے آل داؤد اللہ کا شکر بجا لاتے رہو، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوئے ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرمایا تو ان جنات کو ان کی موت پر کسی نے آگاہ ہی نہ کی۔ بہت زیادہ فمبلز ہو رہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرمایا تو ان کو ان کی موت پر کسی نے آگاہی نہ کی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ در حقیقت سبا کے لیے ان کے وطن ہی میں نشانی موجود تھی۔ 2 باغ تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ تم اپنے رب کے رزق سے کھایا کرو اور اس کا شکر بجا لایا کرو۔ شہر پاکیزہ ہے اور رب بڑا بخشنے والا ہے۔ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو 2 ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بدمزہ پھل اور کچھ جھاؤ اور کچھ تھوڑے سے بیری کے درخت رہ گئے تھے۔ یہ ہم نے انہیں ان کے کفر و ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم بڑے ناشکر گزار کے سوا سزا نہیں دیتے۔ اور ہم نے ان باشندوں کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی نمایاں اور متصل بستیاں آباد کر دی تھی، اور ہم نے ان میں آمد و رفت کی منزلیں مقرر کر رکھی تھیں کہ تم لوگ ان میں راتوں کو اور دنوں کو بے خوف ہو کر چلتے پھرتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہماری منزل سفر کے درمیان فاصلے پیدا کر دے۔ اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں فسانے بنا دیا، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا۔ بے شک اس میں بہت صابر اور نہایت شکر گزار شخص کے لیے نشانیاں ہیں۔ بے شک ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا، تو ان لوگوں نے اس کی پیروی کی بجز ایک گروہ کے جو مومنین کا تھا، اور شیطان کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر یہ کہ اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو اس کے بارے میں شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ فرما دیجئے تم انہیں بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں میں ذرہ بھر کے مالک نہیں ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کی دونوں میں کوئی شراکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اس کی بارگاہ میں شفاعت نفع نہ دے گی سوائے جس کے حق میں اس نے اذن دیا ہوگا، یہاں تک کہ جب
उनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाएगी तो वो सवालन कहेंगे कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। वो जवाबन कहेंगे हक फरमाया, और वही निहायत बुलंद बहुत बड़ा है। आप फरमाइए तुम्हें आसमानों और जमीन से रोजी कौन देता है। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह, और बेशक हम या तुम जरूर हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में। फरमा दीजिए तुमसे इस जुर्म की बाज पुरस ना होगी जो हमसे सरजद हुआ है। फरमा दीजिए तुमसे उस जुर्म की बाज पुरस ना होगी जो हमसे सरजद हुआ, और ना हमसे उसका पूछा जाएगा जो तुम करते हो। फरमा दीजिए हम सबको हमारा रब जमा फरमाएगा, फिर हमारे दरमियान हक के साथ फैसला फरमाएगा, और वो खूब फैसला फरमाने वाला, खूब जानने वाला है। फरमा दीजिए मुझे वो शरीक दिखाओ जिन्हें तुमने अल्लाह के साथ मिला रखा है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं है, बल्कि वही अल्लाह बड़ी इज्जत वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और हमने आपको नहीं भेजा मगर इस तरह कि आप पूरी इंसानियत के लिए खुशखबरी सुनाने वाले और डर सुनाने वाले हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, और वो कहते हैं कि ये वादा आखिरत कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। फरमा दीजिए तुम्हारे लिए वादे का दिन मुकर्रर है, ना तुम इससे एक घड़ी पीछे रहोगे और ना आगे बढ़ सकोगे। बाईसवें सुपारे का निफ्स आज यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आधा सिपारा नहीं मुकम्मल हो पा रहा अपने रोज़े के हिसाब से, वो मुकम्मल कर सकूँ, लेकिन आज फिर हम निस्फ़े रुकेंगे क्योंकि रोज़े का वक्त आ चुका है, अफ्तार का वक्त आ चुका है। कल इंशाअल्लाह 22वें सिपारे का आधा जो रह चुका है और 23वां सिपारा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। जो एक वक्त पे यहाँ पे था और कल को देख रहा होगा, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हम अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हम अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी हो जाए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।